यस Good afternoon. हम लोग बेशक हम कम हो पर what does God tell us कि जहाँ 2 या 3 जमा होते हैं मैं वहाँ ही हूँ. तो हम 2 और 3 ही हैं और God bless you कि आज ये हमारा 1 अगस्त के सर्विस में आप आए हो, आप शामिल हो और शुक्र करती हूँ कि आपने टाइम निकाला. ये छुट्टियों के दिन है तो ठीक है, कम है पर हम अपना काम जारी faithfully हम कर रहे हैं हर first Sunday of the month. So welcome everyone here and also anybody that's watching online as well. So is that better? Don't have to lift his voice except when I'm shouting at my children. बड़ी तीखी आवाज़ है. Is that better? That's better, yes. Okay. Thank you. तो हाँ, वेलकम. ये हमारा Scottish Asian Christian Fellowship का सर्विस है और ये हर first Sunday of the month को लगता है यहाँ St. Ninian's में. So you're very welcome this afternoon. And जैसे मैं कह रही थी कि हम बेशक हम कम लोग हैं, बहुत सारे लोग अभी holidays पे भी हैं. So we miss them and we hope that they're back very soon as well. So first I'd like to open with our word of prayer. तो सिस्टर अमनदीप आके हमारे जो है opening prayer देंगे. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वशक्तिमान ज़मीन आसमान के खालिक ते मालिक है सारा धन्यवाद तेरा शुक्र करते शुक्रगुजार है सामर्थ्य खुदावा दयावान प्रभु जी. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਖੁਦਾਵਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਮਨੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਸਕੇ. ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾਵਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਦਇਆ ਦੇ ਸਾਗਰ ਸਾਮਰਥੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ. ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਹੋ ਦਇਆਵਾਨ ਹੋ ਦਇਆ ਦੇ ਸਾਗਰ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ ਜ਼ਿੰਦੇ ਹੋ ਜਲਾਲੀ ਹੋ ਸਾਮਰਥੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋ. ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਮਰਥੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ. ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ. ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾਵਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ. ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਖੁਦਾਵਾ ਉਸ ਇਸ ਇਬਾਦਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵਾ ਸਾਮਰਥੀ ਖੁਦਾਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਦਇਆ ਦੇ ਸਾਗਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵਾ ਠੀਕ ਨੂੰ ਜਨ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਦਇਆ ਕਰਨਾ ਖੁਦਾਵਾ ਸਾਮਰਥੀ ਖੁਦਾਵਾ ਜੋ ਖੁਦਾਵਾ ਜੋ ਗੀਤ ਭਜਨ ਦਾ ਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਖੁਦਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਖੁਦਾਵਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਭਜਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਤੁਤੀ ਆਰਾਧਨਾ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾਵਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ. Thank you Lord Jesus. Hallelujah. ਸਾਮਰਥੀ ਖੁਦਾਵਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦਾਵਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਜੋ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾਵਾ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਰਾਹੀਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਖੁਦਾਵਾ ਪਾਸ ਦਾ ਵਚਨ ਖੁਦਾਵਾ ਇਹ ਵਚਨ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ. ਵਚਨ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁੱਧ ਰਹਿੰਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ. ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਾਮਰਥੀ ਖੁਦਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵਾ ਬੱਚੀ ਦਿਲਾਂ ਮਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਰਾ ਨਾ ਸਕੇ. ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾਵਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਿਆਲੂ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਖੁਦਾ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਔਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ. ਜੋ ਆ ਰਹੇ ਖੁਦਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਖੁਦਾਵਾ. ਸਾਰੀ ਇਬਾਦਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ 'ਚ ਛੁਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਮਰਥੀ ਖੁਦਾਵਾ. ਸਭ ਕੁਛ ਮੰਗਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੇਟੇ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਵਸੀਲੇ ਸਾਮਰਥੀ ਵਸੀਲੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੇਨ आमेन. हम अब अपने जो प्रेज एंड वर्शिप का हिस्सा है वो स्टार्ट करते हैं गीत गाए. तो हम गीत गाएंगे. प्रस्तुति को हम शुरू करेंगे और ज़बूर से स्टार्ट करेंगे. आप पे ऊपरों हाथ बढ़ा के मैनू रब बचावेगा. मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पर सारी स्लाइड्स भेज दी हैं क्योंकि आज हमारे पास स्लाइड स्क्रीन नहीं है तो उसकी तरफ से माजरत है. लेकिन आपके मोबाइल पे आपके पास लिरिक्स होंगे, आप उसमें से देख सकते हैं. बचाएगा आप
तेरा प्यार है ओ तेरा, ओ जोर तेरा है, तेरा प्यार है ओ तेरा। मेरा कीता सामना होना जदों सामने बिपताना, पर खुदावंद मेरा रब सी मेरा छुड़ाने मन। ओ जोर तेरा है, तेरा प्यार है ओ तेरा, ओ जोर तेरा है, तेरा प्यार है ओ तेरा। मैनू खुले खाते होते आपे काट ले आया सी, मेहरबान है मेरे होते मैनू आप छुड़ाया सी। ओ जोर तेरा है, तेरा प्यार है ओ तेरा, ओ जोर तेरा है, तेरा प्यार है ओ तेरा, तेरा प्यार है ओ तेरा, तेरा प्यार है ओ तेरा। Praise the Lord. एक और ज़बूर हम गाएंगे, उसकी प्रस्तुति में दुखांदे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ। जब हम उससे फरियाद करते हैं अपने मुसीबत के मुश्किल के दिनों में, तो हम उसी से फरियाद करते हैं और वो हमारी सुनता है। तो इसको हम गा कर उसकी सताइश में जो है ना वो बयान करेंगे। दुखांदे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ, दुखांदे वेले तेरी यहोवा
हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रस्तिश को आगे बढ़ाते हुए गीत गाएंगे हम, बने रहो तुम, बने रहो यीशु में बने रहो। हम सबको आता होगा ये गीत, सुना हुआ आप सबने जी, सब मिलके गाते हैं, ताली भी बजा सकते हैं हम लोग। बने रहो तुम, बने रहो, बने
खुदावंद के रूह के लिए, इसके मसला के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे, प्रस्तिश करेंगे कि खुदावंद का पाक रूह हमें आज आके टच करे, हमारी ज़िंदगियों में आए, ताकि हम उसके कलाम को जो है वो उसके रूह की रहनुमाई से समझ सकें। आप चाहें तो आप प्लीज सब बैठ सकते हैं। Hey
Praise the Lord. थैंक यू सो मच भाई प्रिसला। ये आखिरी जो गीत है ज़रूर हमें लेके आ रहा है कि हम आज का पैगाम सुने। फिर उससे पहले हम बाइबल रीडिंग सुनेंगे, तो डॉक्टर मुबीना रोशी आएगी और बताएगी कि कहाँ से पढ़ना है और क्या। Oh yes, yes. I had a green writing. Yeah, the children can go to the Sunday school. थैंक यू। आज की तिलावत यशायाह नबी का सहीफा उसका 11 बाब उसकी पहली 10 आयात में पढ़ेंगे। और यसी के तने से कोम्पल निकलेगी, और यसी के तने से कोम्पल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक बारबर शाख पैदा होगी, और खुदावन की रूह उस पर ठहरेगी, हिकमत और खैर की रूह, मसलहत और कुदरत की रूह, मार्फत और खुदावन के खौफ की रूह। और उसकी शादमानी खुदावन के खौफ में होगी, और वो ना अपनी आंखों के देखने के मुताबिक इंसाफ करेगा और ना अपने कानों के सुनने के मुआफिक फैसला करेगा, बल्कि वो रास्ते से मिस्कीनों का इंसाफ करेगा और अदल से ज़मीन के खाकसारों का फैसला करेगा। और वह अपनी ज़ुबान के असा से ज़मीन को मारेगा और अपने लबों के दम से शरीरों को फना कर डालेगा। उसकी कमर का पटका रास्तबाजी होगी और उसके पहलू पर वफादारी का पटका होगा। बस भेड़िया बर्रा के साथ रहेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठेगा, और बछड़ा और शेर, बच्चा और पला हुआ बैल मिलजुल कर रहेंगे, और नन्हा बच्चा उनकी पैशरवी करेगा। गाय और रीछनी मिलकर चरेंगी और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे, और शेर बबर बैल की तरह भूसा खाएगा, और दूध पीता बच्चा सांप के बिल के पास खेलेगा, और वो लड़का जिसका दूध छुड़ाया गया हो अफई के बिल में हार डालेगा। और वो मेरे तमाम कोहे मकदस पर ना ज़रर पहुँचाएंगे ना हलाक करेंगे, क्योंकि जिस तरह समंदर पानी से भरा है, उसी तरह ज़मीन खुदावन के इरफान से मामूर होगी। और उस वक्त यूँ होगा कि लोग यसी की उस जड़ के तालिब होंगे जो लोगों के लिए एक निशान है, और उसकी आरामगाह जलाली होगी। खुदा की पाक कलाम के पढ़े और समझाने में उसकी बरकत। चलिए हम दुआ करें। कदूस नंतर आसमानी बाप, मैं शुक्र और तारीफ करती हूँ इस दिन के लिए जो तूने आज हमें बख्शा है। मैं शुक्र करती हूँ सब जो आज पहुँचे हैं या वो जो शायद आज हमारे में शामिल नहीं है, वो उन सब के लिए मैं दुआ करती हूँ, तो उनको बरकत दे। मैं ख़ास तौर पे आज दुआ करती हूँ आज के पैगाम के लिए और अंकल विलियम के लिए कि जो भी तू हमें सिखाना चाहता है कि हम अपने दिलों को खोलें और हम सुने और समझें और कुछ पाएँ। ये सब कुछ मैं खुदा यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन। आमीन।
ऊपर कर दीजिए अपनी हेलो और ऊपर इसको नहीं साथ नहीं आप इसको डिस्टर्ब हेलो हेलो आ रही हम दुआ करें कि दूसरे बुलफाज आसमानी बाप का देवतिक जलाली खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं आज के इस मुबारक दिन के लिए जो तूने हमें ज़िंदगी में दिया खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं हर रोज़ की हिफाजत के लिए निगरानी के लिए दिनों हफ्तों महीनों और सालों के लिए कि आज तक तू हमें अपने साथ लेकर चलता रहा और तूने खुदा हमें ये बारहा मौका बख्शा कि हम अपनी तौबा करें और तेरी नज़दीकी में आए खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि आज जहाँ जहाँ दुनिया में जिस भी हिस्से में हम बातें हो चुकी हैं हो रही हैं या होने वाली हैं खुदा वहाँ पर तेरा पाक रूह का मसद है अपने लोगों को अपने बंदों को इस्तेमाल कर और खुदा पाक रूह का मसा से खुदा दिलों को छू आज के पाक कलाम के लिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ खुदा मैं अपने आप को तेरे हजूर लेकर आता हूँ मेरी रूह जान जिस्म का ज़िम्मा ले खुदा क्योंकि तू जानता है कि हम नालायक हैं कमरे हैं गुनाहगार है खुदा लेकिन ए खुदा तेरा शुक्र करते हैं कि तू निकम्मों को गुनाहगारों को और खुदावंद मस्कीनों और गरीबों और गुरबा को इस्तेमाल करता है खुदावंद मैं इस लायक तो नहीं लेकिन अब खुदावंद तेरे आगे मिन्नत करता हूँ कि मेरे रूह जान और जिस्म का ज़ुम्मा ले मेरे होंठों का ज़ुम्मा ले मेरे होंठों का खत्म कर खुदावंद और आज जो कुछ भी हम पाक कलाम पढ़ें और सुने वो तेरी तरफ से खुदावंद बल्कि हम सब के लिए बाइस बरकत है तेरे इस पाक पवित्र जलाली खुदा यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं आमीन। जैसे आज हमने पढ़ा यशायाह उसका 11वां बाब और यस्सी के तने से कौम पर निकलेगी और उसकी जड़ों से एक बार 12 और शाख पैदा होगी और खुदान की रूह उस पर ठहरेगी हिकमत और खुर्द की रूह मसलहत और कुदरत की रूह मार्फत और खुदान की रूह और उसकी शादमानी खुदान के खौफ में होगी। अगर हम इससे पहले 9 बाब पढ़ें तो उसमें खुदा यीशु मसीह के लिए पेशन गोई की गई है और यहाँ पे भी वही पेशन गोई है कि यस्सी के तने से यानी दाऊद के वसीले से यहाँ पे भी लिखा हुआ है 9 चैप्टर उसकी 6 और 7वीं आयत में हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अजीब व मशीर खुदाए कादर अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। और 11वें बाब में जैसे हमने पढ़ा कि खुदा उनकी रूह उस पर ठहरेगी हिकमत और खुर्द की रूह मसलियत और कुदरत की रूह और खुदा के खौफ की रूह। ये वो 7 रूहें हैं जो खुदा ने बाप में अपने बेटे को बख्शी और इन 7 रूहों का पूरा जो आसमान और ज़मीन और आसमान से ऊपर और ज़मीन के नीचे है इन्हीं रूहों के अंदर है और इसी पे बाप ने अपने बेटे को कंट्रोल बख्शा और उन्हें ये इख्तियार दिया कि वो इन रूहों के वसीले से इन 7 रूहों के वसीले से आप जब हम आगे जाकर पढ़ेंगे और इसका मैं आपको खुलासा भी बताऊंगा कि इन रूहों का क्या काम है। ये 7 वो रूहें हैं
अगर हम इसको इंग्लिश में पढ़ें तो वो ज़्यादा ईजी है हमारे लिए समझने के लिए। एंड देयर शैल कम एंड द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड शैल रेस्ट अपॉन हिम, द स्पिरिट ऑफ विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग, the spirit of counsel and might, the spirit of knowledge and the fear of Lord। ये वो 7 रूह हैं जो खुदावंद ने बाप ने अपने बेटे को इख्तियार दिया और जिसे हम कहते हैं कि होली स्पिरिट। बाप, बेटा और होली स्पिरिट, दे आर कंबाइंड वन इन टुगेदर। अब इन 7 रूहें जो हैं, हम अगर आगे जाके इसका खुलासा देखेंगे, लेकिन मैं उससे पहले नीचे आना चाहता हूं जहां पे हमने पढ़ा है। और उस वक्त यूं होगा और उसकी कमर का पटका रासबाजी होगा, उसके पहलू पर वफादारी का पटका होगा। बस भेड़िया बड़े के साथ रहेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठेगा, और बछड़ा और शेर बच्चा और पला हुआ बैल मिलजुल कर रहेंगे, और नन्हा बच्चा उसकी पेशगोई करेगा, और गाय और बछड़ी मिलकर चरेंगी, उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे, और शेर बबर बैल की तरह भूसा खाएगा। दूध पीता बच्चा सांप के बल के पास खेलेगा, और वो लड़का जिसका दूध छुड़ाया गया और उफ़ी के बल में हाथ डालेगा, और मेरे तमाम को मुकद्दस का ना ज़र पहुँचाएंगे ना हलाक करेंगे, क्योंकि जिस तरह समुंदर पानी से भरा हुआ है उसी तरह ज़मीन खुदावंद के अरफान से मामूर है। और उस वक्त यूँ होगा कि लोग यस्सी के उस जड़ के तालिब होंगे जो लोगों के लिए एक निशान है, और उसकी आरामगाह जलाली होगी। ये जब हम अभी मैं आपको मुकाशवा में लेके जाऊँगा, और ये उस वक्त मुकाशवे की बात कर रहे हैं। ये आज से 600-650 साल पहले खुदा यीशु मसीह के आने से पहले यशायाह नबी की मार्फत जो पेशन गोई की थी, ये वो पेशन गोई है कि जो आने वाला बेटा है, जो आने वाला खुदा यीशु मसीह है, उसके इख्तियार में क्या क्या है। और जब हम इन रूहों का इख्तियार देखते हैं तो अगर हम पैदाइश में जाएं तो बाप इब्राहिम, इसहाक, याकूब और यूसुफ को ये इख्तियार मिला था। उससे पहले ये इख्तियार जो है, रूह का इख्तियार जो था वो हनूक के पास था, वो हनूक उठा लिया गया। लेकिन बाप इब्राहिम, इसहाक, याकूब और यूसुफ तक खुदावंद अपना रूह काम करता रहा। और आपने जब हम पढ़ते हैं, स्टोरी पढ़ते हैं, तो यूसुफ को किस तरह खुदावंद ने एग्जाइल में उसे खुदावंद ने अपने रूह की हिकमत दी और उसे एग्जाइल से, जेल से निकाल कर एक बादशाह का ओहदा दिया। ये खुदावंद के रूह का काम था। बल्कि अगर हम इब्राहिम के साथ देखें तो खुदावंद इब्राहिम के साथ सिर्फ रूह में नहीं बल्कि फरिश्तों के वसीले से भी, यानी खुद उनसे बातें करता रहा। लेकिन यूसुफ के बाद मूसा तक 430 साल तक, इसमें बाइबल में जहां तक मेरा नॉलेज है, आई डोंट नो कि जहां तक मेरा नॉलेज है कि यूसुफ और मूसा तक 430 साल तक खुदावंद ने बिल्कुल खामोशी इख्तियार की। और उसकी एक वजह है, उसकी एक वजह यह थी कि खुदावंद ने जो बाप इब्राहिम से वादा किया था कि मैं तुझे रेत के जरों की मानद बढ़ाऊंगा, इसलिए खुदावंद उनको मिस्र में लेके गया और वहां पर उनकी परवरिश करता रहा, उनकी बढ़ोतरी करता रहा। जब हम देखते हैं कि वो बनी इसराइल मिस्र से, एग्जाइल से निकल कर आते हैं तो 6 लाख सिर्फ आदमी थे, और आप देखें कि उनके साथ बाल बच्चे कितने, तो कहते हैं कि फिगर जो बनते तकरीबन 20 लाख से ज्यादा थे लोग।
खुदावंद ने खामोशी इख्तियार की और उनकी परवरिश करता रहा जायल मिस्र में। लेकिन मूसा के बाद फिर खुदावंद ज़ाहिर हुआ और खुदावंद ने मूसा को अपना रूह बख्शा। और मूसा से लेके मलाकी तक, मलाकी जो हमारे आखिरी पुराने नामे की किताब है, मलाकी तक हर 50 साल 100 साल के बाद खुदावंद अपने नबियों को भेजता रहा। और उसका जिक्र ऐसे है कि जैसे आप देखेंगे सैमसन को खुदावंद ने रूह बख्शी, दिलेरी की रूह, और वो एक गधे के जबड़े के साथ 1000 आदमी को मार देता है। ये रूह का काम है, इसमें कोई तलवार का और इसमें किसी ऐसी ताकत का काम नहीं। ये खुदावंद का रूह उसके साथ था, क्योंकि खुदावंद ने उसे अपना नज़ीर चुना। नज़ीर का मतलब है कि अपना प्यारा, बाइबल में उसके लिए नज़ीर लिखा हुआ लफ्ज़। खुदावंद ने सैमसन के लिए अपना लफ्ज़ नज़ीर चुना, लेकिन आप जानते हैं कि उसने थोड़ी सी गलती की और खुदावंद का रूह उससे जुदा हुआ। इसी तरह मूसा के बाद यशवा को खुदावंद ने अपने पाक रूह का मसा दिया और उस खुदावंद ने कहा कि मैं तेरे साथ हूं, ना डर ना खौफ कर। और खुदावंद ने उसे इख्तियार किया और खुदावंद ने जो वादा किया था प्रॉमिस लैंड का, खुदावंद ने कहा कि अपनी कौम को लेके साथ चल। और रूह का काम था कि जब वो यरू की दीवार के साथ चक्कर लगाते हैं वो दीवार गिरती है। ये खुदावंद की रूह का काम था। जो मूसा ने मौजज़ात किए, ये खुदावंद की रूह का काम था। उसे दिलेरी की रूह दी। और वो क्या नाम था मिस्र के बादशाह का, फराउन के सामने वो मौजज़ात करता रहा और खड़ा रहा, इवन कि उसने 2 समुंदर हिस्से कर दिए। ये खुदावंद का रूह है। मेरा कहने का मकसद ये है कि खुदावंद ने, बाप ने अपने बेटे को इन सारी रूहों पर इख्तियार दिया। ये जो अपने नबियों को रूहें देता रहा, ये चंद किस्म की रूहें थी। पोर्शन, इट वॉज ए पोर्शन। उन 7 रूहों का पोर्शन है, जैसे लिखा हुआ है, खुद की रूह, मसलत की रूह, माइटी स्पिरिट, जो भी। लेकिन अब ये देखें, उसके बाद एलिया का हम जिक्र करते हैं। एलिया को खुदावंद ने रूह बख्शी और उसने अखियाब से कहा कि मैं उस खुदावंद की कसम खाता हूं जिसके सामने मैं खड़ा हूं कि 3 साढ़े 3 साल तक ना मींह बरसेगा, ना बारिश होगी, ना ओस पड़ेगी, ना बारिश होगी। तो खुदावंद ने एलिया के वसीले से, रूह के वसीले से काम किया। और एलिया के लिए तो कहते हैं कि वो एक उड़ने वाला नबी था। उसका पता नहीं चलता था कि वो यहाँ पे है और कल उधर कहीं और चला जाए, 10 मील और चला जाए आगे, नेवर नो। और खुदावंद ने एलिया के वसीले से, अपनी रूह के वसीले से एलिया से काम लेता रहा। एलिशा को खुदावंद ने डबल पोर्शन दिया एलिया से। अगर एलिया ने 16 मौजे किए तो एलिशा ने 32 मौजे किए, और बाद जगह पे उसे मुर्दों को भी जिंदा किया। ये खुदावंद की रूह का काम है। ये खुदावंद की तरफ से जो रूह है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसका जिक्र खुदावंद ने 650 साल पहले यसाया की मार्फत किया था। अगर हम दानियल की बात करें, दानियल को खुदावंद ने नमुक्ते-नजर के सामने इस्तेमाल किया। जो इल्म, जादूगर और जो बड़े बड़े नजूमी थे और जो उनके पास बहुत वसी इल्म था, लेकिन उनका इल्म दानियल के सामने बिल्कुल कारामद ना हुआ। और लेकिन जो खुदावंद ने दानियल को रूह दी, उसके वसीले से उसने वो सारी तर्जुमा किया जो कोई भी कर नहीं सकता था। अगर हम हिजकियेल पढ़े 37 बाब, तो खुदावंद ने हिजकियेल को कहा कि जा इन मुर्दा हड्डियों को
कह के वो जिंदा हो जाए और ऊपर गोश्त और मांस चढ़ाए। हिजकिय्याह 37 अगर हम पढ़े तो हिजकिय्याह को इख्तियार बख्शा के मुर्दा हड्डियों को इकट्ठा कर और इनके ऊपर मांस आए, और वो ये बनी इसराइल के लिए आखिरत में भी यही पेशन गोई की है कि वो मुर्दों को यानी बनी इसराइल को दोबारा इकट्ठा करेगा, मगर अगर हम मकाशवा में जाएं तो। अब मैं आता हूं अपने असली चैप्टर पर, जो रूह का, मकाशवा में जो रूह का जिक्र है। खुदावंद ने मकाशवा के वसीले से यूहन्ना को वो सारा नक्शा जो आसमान पर, जो आखिरी बादशाह का, जिसे के लिए हम कहते हैं कि भी हमने खुदावंद की बादशाही में शामिल होना है, उसका नक्शा जो है वो यूहन्ना को दिया। और यूहन्ना वो शागिर्द था, इससे पहले खुदावंद यीशु मसीह ने एक अपना छोटा सा टाइटल दिया। मेरा ख्याल है अगर आप इसराइल गए हैं तो भाई आप भी गए होंगे इसराइल, जहां पे वो याकूब, पतरस और यूहन्ना पहाड़ पर जाते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह मूसा और एलिया से बातें करते हैं। ये एक छोटा सा टाइटल था खुदावंद यीशु मसीह का। वो कहते हैं ना, फिल्म से पहले एक टाइटल चला था कि देखें, ताकि शागिर्द बिलीव करें कि वाकई ये खुदा का बेटा है। और यही यूहन्ना, ये इस यूहन्ना के लिए, इस शागिर्द के लिए जिक्र है कि इसने यूहन्ना की किताब लिखी, 3 खत लिखे और मकाशवा लिखा। खुदावंद के रूह से इसने मकाशवा लिखा। ये वही यूहन्ना है। 2 यूहन्ना थे, एक यूहन्ना अस्तबागी और एक यही वाला यूहन्ना रसूल। अब हम देखते हैं कि इन 7 रूह का क्या काम है और ये कैसे मकाशवा में ज़ाहिर होती हैं। खुदावंद इनको यूहन्ना के ऊपर कैसे ज़ाहिर करता है। अगर हम मकाशवा पढ़ें, पहला बात, यीशु मसीह का मकाशवा जो उसे खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदों की वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना जरूर है। उसने अपने फरिश्ते को भेजकर उसकी मार्फत उन्हें अपने बंदा यूहन्ना पर जाहिर किया। यूहन्ना पर मकाशवा जाहिर हुआ खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। और इससे पहले मैं बताऊं आपको कि ये वही यूहन्ना है जो, क्या कहना चाहिए, तिब्बी मौत या अपनी मौत मरा, परसिक्यूट नहीं हुआ। ये यूहन्ना जो है एक यूनान में जजीरा है पत्तमस, वहां पे उसको एग्जाइल किया गया और वहां पे 18 महीने ये यूहन्ना जो है वो जजीरे में रहा। और उस जजीरे के लिए कहते हैं कि जिसको काला पानी करना होता या जिसको निकालना होता था उसको वहां भेज देते थे, वो खुद ही अपनी मौत मर जाता था वहां पे ना कुछ खाने के लिए थे, ना पीने के लिए कुछ भी नहीं था, तो इसको वहां पे भेजा। लेकिन उससे पहले रोमी गवर्नमेंट ने, रोमी हुकूमत ने इसको एक उबलते ऑयल में डाला, इसी यूहन्ना को। लेकिन ये यूहन्ना जो है वहां से वो ऑयल उसके लिए ठंडा हो गया और वो वहां से बच गया। इसीलिए इसको उन्होंने कहा कि ये तो हमारे बस की बात नहीं है। तो यूहन्ना को फिर एग्जाइल में भेजा, पत्तमस जो ग्रीक का एक जजीरा है, और वहां पे ये फिर खुदावंद यीशु मसीह का मकाशवा वहां पे जाहिर हुआ। यूहन्ना की जानब से उन 7 कलीसियाओं के नाम जो आसिया में हैं, उसकी तरफ से जो है, जो था और जो आने वाला है, उन 7 रूहों की तरफ से जो उसके तख्त के सामने हैं, ये वही 7 रूहें हैं। उसके तख्त के सामने
ये अभी आगे भी मैं जब पढ़ के बताऊंगा, किस तख्त के सामने? खुदा यीशु मसीह के तख्त के सामने। और उन 7 कलीसियों के पास भेज दे, यानी उफसस, समरूना, परगमन, तिथोरा, सरदीस, फिलदल्फिया और लदीकिया, ये 7 कलीसियाओं के लिए खुदावंद ने यूहन्ना को चुना कि उनके लिए खत्तो किताबत करे और उन्हें पैगाम दे। लेकिन इसके बाद खुदावंद उस पर कैसे जाहिर होता है, वो आगे हम पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना उसकी 12 आयत। मैंने उस आवाज देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा जिसने मुझसे कहा था, और फिर कर सोने की 7 चिरागदान देखे, और उन चिरागदानों के बीच में आदमजात से एक शख्स देखा जो पांव तक का जामा पहने और सोने का सीने पर बांधे हुए था। उसका सर और बाल सफेद ऊन बल्कि बर्फ की मानद सफेद थे, और उसकी आंखें आग के शोला की मानद थी, और उसके पांव उस खालस पीतल के से थे जो भट्टी में तपाया गया हो, और उसकी आवाज जोर के पानी के से थी, और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे। अब ये ज़हन में रखिएगा, 7 सितारे। पहले हमने पढ़ा 7 रूहें, और उसके मुंह में से एक 2-धारी तेज तलवार निकलती थी। तेज तलवार क्या है? मुंह से 2-धारी तलवार, खुदावंद का कलाम। ये वो तलवार है जो खुदावंद के कलाम में थी। 1-2 तेज तलवार निकलती थी, और उसका चेहरा ऐसा चमकता था जैसे तेजी के वक्त आफताब यानी सूरज की मानद उसका चेहरा चमक रहा था। जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने यह कहकर मुझ पर अपना हाथ रखा कि खौफ न कर, मैं अव्वल और आखिर हूं, और जिंदा हूं, मैं मर गया था। ये कौन मरा था? खुदा यीशु मसीह हमारे लिए मरा था, मसलूब। ये वही। और देख, अगला बाद जिंदा रहूंगा, और मौत और आलम अरवाह की कुंजियां मेरे पास हैं। बस जो बातें तूने देखी और चाही और जो हैं और जो उनके बाद होने वाली, उन सबको लिख ले। यानी उन 7 सितारों का भेद तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन सोने के 7 चिरागदान और 7 सितारे, तो 7 कलीसियाओं के फरिश्ते, और वो 7 सितारे चिरागदान कलीसियाएं हैं। 7 रूहें जो हैं, ये तो खुदावंद यीशु मसीह को जाहिर करती है। खुदावंद यीशु मसीह के पास, जैसे यसाया में लिखा और यहाँ पे मकाशवा में डिक्लेयर हुआ कि उस 7 रूहों की तरफ से, ये खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से हैं। और उन 7 सितारे, ये 7 वो सितारे हैं जो 7 फरिश्ते हैं। अगर आपको टाइम मिले तो ये घर जाके स्टडी करें इसकी मकाशवा की। ये वही 7 सितारे हैं जो खुदावंद ने, जिनको पावर दी हुई है, वो आज भी वो काम कर रहे हैं, और अभी भी काम कर रहे हैं, और उस वक्त भी काम कर रहे थे। अगर हम देखेंगे तो उनके पास देखें कितनी पावर है उन 7 सितारों के पास, जो 7 फरिश्ते हैं। क्योंकि यहाँ पे लिखा कि वो 7 सितारे 7 फरिश्ते हैं। 7 चिरागदान का जिक्र है यहाँ पर, और वो 7 चिरागदान कलीसियाएं हैं। वो कलीसियाएं जो अभी मैंने पढ़ा कि यानी उफसस, स्मुरना, परगमन, और ये 7 कलीसियाएं उस वक्त थी। लेकिन आज खुदावंद की ये कलीसियाएं जो हैं, उन्हीं कलीसियाओं में शामिल हैं, क्योंकि उस वक्त तो बढ़ोतरी हो रही थी। और यूहन्ना जो है, जब वहां पे वो एग्जाइल में था, तो फिर उसने अपने खत लिखने शुरू किए, और वहां पे जितने भी इसके शागिर्द थे, जो बाकी लोग थे, जो उसके जानने मानने वाले थे, वो उन्होंने वहां आके उसको ढूंढा, उसको अप्रोच किया, और ये खत लिख लिख कर उनको देता, और दुनिया में ये फैलते रहे। जिस तरह पालूस रसूल ने, पतरस ने, दूसरे ने काम किया। फिर वहां से उसने, यूहन्ना ने अपना काम किया, और उसके बाद 18 महीने के बाद
ये इसको वहाँ से निकाला गया और ये फिर क्या कहना चाहिए, तिब्बी मौत मरा। अच्छा, तिब्बी मौत मरा। लेकिन अगर हम खुदा यीशु मसीह की जिंदगी और उसकी तालीम पर जाएं, तो अगर यूहन्ना 14 बाब, इसी यूहन्ना की 14 बाब देखें, वार्निंग मुझे मिल गई है इसलिए मैं जल्दी और मैं ये समझता हूं कि हम 14 बाब के मुताबिक हम खुदा यीशु मसीह के मानने वाले हैं, हम बड़े मुकद्दस हैं, हम बड़े क्या कहना चाहिए खुशकिस्मत है कि क्रिश्चियन घरानों में पैदा हुए और खुदा यीशु मसीह को मानने वाले हैं। क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है और उसका 14 बाब अगर देखें 16 आयत, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूह हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती है ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। अब ये वही 7 रूहों में से रूह है जो खुदा वादा करता है कि मैं तुम्हें ये अपना रूह बख्शूंगा। यहां पे लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा। मैं एक मिनट हवाला देख लूं। मैंने ये बातें तुम्हारे साथ रहकर तुमसे कही, ये खुदा यीशु मसीह की तरफ से, लेकिन मददगार यानी रूह कुदस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा। यहां पे भी जिक्र भी है कि मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा। उसकी 18वीं आयत देखें, मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। थोड़ी देर बाकी है कि दुनिया मुझे फिर ना देखेगी मगर तुम मुझे देखते रहोगे। ये खुदा यीशु मसीह के वो वादे हैं, ये वही पाक रूह है जो यशायाह नबी की मार्फत किया गया और मकाशवा में उसका यानी आप ये कहें कि यूहन्ना के वसीले से हमारे ऊपर मकाशवा खोला गया ताकि हम ये हकीकत में जान सकें कि हम किसी फॉल्स या किसी ऐसी झूठी बात पे यकीन नहीं करते, बल्कि ये हकीकत है। जो हमारा कलाम है वो खुदा का पाक कलाम है, वो हकीकत है और उसकी हकीकत यूहन्ना के वसीले से मकाशवा में जाहिर की गई है। अब देखें सिर्फ 5 मिनट, लेकिन इसके लिए हमें करना क्या है? इस रूह को पाने के लिए रूह कुदस, देखें जब हम मसीह घराने में पैदा होते हैं तो रूह हमारे साथ होता है। हम बचपन ही से बपतिस्मा लेते हैं, कैथोलिकिज्म में तो बचपन ही से बपतिस्मा लिया जाता है, लेकिन अब जब हम क्रिश्चियन घरानों में पैदा होते हैं तो रूह हमारे साथ है। वो रूह कुदस जो खुदा ने हमें वादा किया है, हमारे जनरेशन से बाप दादा से हमें मिल जाता है, मिरास में हमें मिल जाता है वो पाक रूह। लेकिन कभी कभी हम उस रूह के लिए खुद ही रुकावट बनते हैं जब हम गुनाह में चले जाते हैं। लेकिन यहां पे मुकाशवा में फिर खुदावंद कहते हैं कि उसका 2 बाब उसकी 4थी आयत, मगर मुझे तुझसे शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी, बस ख्याल कर कि तू कहां से गिरा है और तौबा करके पहले की तरह काम कर, और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिराग दान को उसकी जगह से हटा दूंगा। इसमें जरूरी है, बेशक रूह हमारे साथ है, लेकिन हम कभी कभी अपने रूह को क्या कहना चाहिए, नाराज करते हैं, सुरदा समथिंग लाइक दैट, कि हम अपनी रूह को रंजीदा करते हैं और रूह फिर हमारे साथ काम नहीं करता। लेकिन खुदावंद ये कहते हैं कि तौबा कर ताकि मैं तुझे, और वादे हैं आगे, जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ न कर। देखो इब्लीस तुम में से बात को कैद में डालने को है ताकि तुम्हारी आजमाइश को
और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे, जान देने तक भी वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। जान देने तक भी वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। ये खुदावंद का वादा है। और ताज क्या है? वो ये रूह है, पाक है। अगर हमारी खुदा खास्ता मसीहत में डेथ हो जाती है, मसीहत में हम अपनी उसमें ईमान में ऐसा हमारे साथ हो जाता है, तो हमें ये हमारा ईमान ये सिखाता हमें कि हम खुदावंद के साथ उस ताज में, उस रास्तबाजी के ताज में शामिल हैं। फिर दूसरा बाब उसकी 16 आयत, बस तौबा कर, नहीं तो मैं तेरे पास जल्द आकर तेरे मुंह की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए उसे पोशीदा मन से दूंगा, जो गालिब आए उसे पोशीदा मन से दूंगा, और एक सफ़ेद पत्थर दूंगा। इस पत्थर पर एक नया नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवा कोई ना जानेगा। फिर मैं बस आखिरी पढ़ता हूँ। तीसरा बाब उसकी 10वीं आयत, चूंकि तूने मेरे सब्र के कलाम पर अमल किया है, चूंकि तूने मेरे सब्र के कलाम पर अमल किया है, इसलिए मैं भी आजमाइश के उस वक्त तेरी हिफाजत करूंगा। जो जमीन के रहने वालों की आजमाइश के लिए तमाम दुनिया पर आने वाला है, मैं जल्द आने वाला हूं। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, ताकि तेरा ताज छीन लिया ना जाए। जो गालिब आए मैं उसे अपने खुदा के मकदस में एक सतून बनाऊंगा, वो फिर कभी बाहर ना निकलेगा। और मैं अपने खुदा का नाम और अपने खुदा के शहर यानी उस नए यरूशलेम का नाम जो मेरे खुदा के पास है, आसमान से उतरने वाला है, अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। बस आखिरी है। इसलिए फिर आगे देखें हम तीसरे बाब की 18वीं आयत, इसलिए मैं तुझे सलाह देता कि मुझसे आग में ताया हुआ सोना खरीद ले, ताकि दौलतमंद हो जाए, और सफेद पोशाक पहन ले, ताकि तू उसे पहनकर नंगेपन के जाहिर होने की शर्मिंदगी ना उठाए, और आंखों में सोना लगाने के लिए सुरमा ले ले, ताकि तू बीना हो जाए। मैं जिन जिन को अजीज रखता हूँ सबको मलामत और तंबीह करता हूँ। बस सरगर्म हो और तौबा कर, देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा, और वो मेरे साथ। जो गालिब आए मैं उससे अपने तख्त के साथ बिठाऊंगा। ये देखिए खुदावंद के वादे हैं तौबा करने वालों के लिए। ये वही वादे हैं जो खुदावंद ने हमारे साथ पाक कलाम के वसीले से किए। अब ये हमारा काम है कि हम इसकी अपने आप की कैसे जजमेंट करें। सिर्फ एक ही बात है, तौबा करें। मेरे अजीजों, उम्र की कोई कैद नहीं। मैं हमेशा कहता हूं कि उम्र की कोई कैद नहीं। बचपन में भी, जवानी में भी और बुढ़ापे में भी खुदावंद हर वक्त हमें माफ़ करने के लिए तैयार रहता है। सिर्फ ये कहता है कि तौबा करो। खुदावंद आप सबको बरकत दे और आपके साथ दुआ करें कि दूसरा बुलफाज आसमानी बाप का मुतक जलाली खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, खुदावंद तेरी तमजीद करते हैं, तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। खुदावंद आज के पाक कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद कि जिस तरह तू गुजरे ज़मानों में अपने बंदों को, अपने नबियों को, अपने बरगजीदों को देता रहा खुदावंद, लेकिन तेरा शुक्र करते हैं कि तूने तो हमें खुदावंद, हम सबको, हम गुनाहगारों को खासकर तूने कहा कि मैं तो आया ही गुनाहगारों के लिए, मैं तो आया ही बीमारों के लिए, मैं तो आया ही रंजीतों के लिए, मैं तो आया ही कैदियों के लिए। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं इस वादे के लिए, खुदावंद उस रूह जान जिस्म के लिए, खुदावंद जो तूने सलीब पर अपनी जान देकर हमें कबूल किया। खुदावंद तूने अपनी जान देकर खुदावंद हमारी खातर कोड़े खाकर खुदावंद हमारी खातर अज़ियतनाक मौत मारा गया। खुदावंद तुझे कोड़े मारे गए ताकि हमारे गुनाह, हमारी बीमारियां,
हमारी लानतें, हमारी बदी बदकारियाँ और हमारी मुसीबतें, परेशानियाँ जो भी खुदावंद किसी भी वजह से हम परेशान, अपनी कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए बरकत मांगते हैं खुदा। अपने लिए मैं बरकत मांगता हूँ, अपने बच्चों के लिए, जो भी हमारे साथ घराने हैं, जो खुदावंद तेरे मानने वाले हैं, तेरे जानने वाले हैं, दुनिया के जिस भी हिस्से में हैं खुदावंद, तो सबको जानता है, सबको माफ कर, क्योंकि तू माफ करने वाला खुदावंद है, तू भला है खुदावंद, तेरी अजमत अजीम है खुदावंद। जैसे तूने कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है खुदावंद, इस रहम और फजल के लिए तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र हो, तेरी तमजीद, इस मिन्नत को सुनना कबूल कर, तेरे पाक पवित्र जलाली खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू अंकल आज के मैसेज के लिए। तो चले हम अपना कलेक्शन लेंगे और उसके साथ फिर हम गीत भी गाएंगे। दिखता नहीं किनारा,
ईमान से विलियम भाई आर्मा नवीद फैमिली बेटी के लिए बेटे के लिए खुदा का शुक्र अदा करूं कि इन्होंने इतने खूबसूरत अंदाज से इस इबादत का एहतमाम किया और लीड किया। मैं समझ रहा हूँ कि जैसे विलियम भाई ने सरमन के दौरान कहा, माफ़ी चाहता हूँ, ये इस बात का सबूत है कि हमारे जवान बेटे बेटियां खिल्द की रूह के साथ, विजडम की रूह के साथ खुदा के कलाम को आगे बढ़ा रहे हैं। कभी कभी सच्ची बात है कि ज़ाती तौर पर जब इर्द गिर्द के हालात को देखता हूँ तो मैं अपने बच्चों को भी कहता हूँ, मैं मायूस हो जाता हूँ। What's the future of our Christian community? सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, पाकिस्तानी, इंडियन नहीं, बांग्लादेशी, तमाम लोग जो कुछ हो रहा है। लेकिन जब इन बच्चों को मैं देखता हूँ, की तरह के दूसरे बच्चों को किस तरह मेहनत के साथ, दिल जमाई के साथ और पाकों के साथ इबादतों का ऑर्गेनाइज करते हैं, हिस्सा लेते हैं, तो एक उम्मीद की किरण पैदा हो जाती है कि नहीं, मैं गलत हूँ। खुदावंद ने ये नए बच्चे इनको तैयार किया, इनको खैर दे रहा है, इनको इल्म दे रहा है, जो हमारी रहनुमाई करेंगे। खुदावंद आप सबको ब्लेस करे। आइए हम लोग कादर मतलब रहेंगे। खुदावंद तेरा शुक्र हो आज के इस फेलोशिप के लिए, आज की इस इबादत के लिए, गीतों के गाए जाने के लिए, और खुदावंद तेरे पाक कलाम के लिए तेरा शुक्र। अब तक जितनी भी दुआएं की गई हैं, चाहे हमारी फेलोशिप में या फेलोशिप के बाहर तेरे घरों में, खुदावंद उन सबको कबूल कर। और खुदावंद खास तौर पर इस वक्त मैं चर्चा पाकिस्तान की बिगड़ती हुई हालत, खास तौर पर डायसिस ऑफ पेशावर को तेरे हुजूर में रखता हूँ, जहाँ कलीसिया में तकसीम दर तकसीम होती जा रही है। तेरे मुकर्रर करता खादमीन तेरे कलाम को छोड़कर भटक चुके हैं। तेरे कलाम की सच्चाई कुदरत के साथ पूरी हो रही है। खुदावंदा कि आखिरी ज़माना में कलाम का कहर पड़ जाएगा। मेरे नज़दीक यही हमारा कहर है कि लाहौर डायसिस और पेशावर डायसिस चर्च ऑफ पाकिस्तान की लीडरशिप से बाहर हो चुके हैं। इस तबाही का रोक खुदावंद बचा। और भी जहाँ जहाँ इंडिया में, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भी किसी मुल्क में अगर ऐसी कंडीशंस, ऐसी सिचुएशंस हैं तो उनको रोक। खुदावंद तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्र है जो तेरे बंदा विलियम भाई ने दिया। इस कलाम को समझने, परखने के लिए हमें पाकरों का मसा दे, ताकि उसी मसा में रहते हुए इस कलाम को जांचें और खुदावंदा तुझसे वो मसा हासिल करें। खुदावंदा जो कुछ हमारे पास है वो सब कुछ तेरा ही दिया, तेरे ही दिए हुए में से खुदावंद एक छोटा सा हिस्सा खुदावंद तेरे काम के लिए, तेरे जलाल के लिए हम सब ने दिया है। इसको ब्लेस कर, इसको कसरत से इस्तेमाल कर, ताकि हमारी ये छोटी सी कंट्रीब्यूशन तेरे नाम को बहुत जलाल देने का बायस बन सके। एक बार फिर नसार कलीसिया को खुदा बाप, बेटे और कुदस के नाम से बरकत देते हुए ये सब कुछ मांग लेता हूँ तेरे बेटे और अपने निजात दहिंदा खुदा यीशु मसीह के वसीले से। आमीन।
your blessing over everyone today as well. Austin bhai aapne announcements deni thi. ठीक है, आप आ जाए. आखिरी And दुआ then we're finished. या दुआ पे लॉर्ड प्रेयर Lord's Prayer. Yeah. Oh, you can lead it then. Thank you. आइए हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल हों। आए हमारे बाप तू जो आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पे भी। तो परमेश्वर हमारे कर्ज़ों माफ़ कर जैसे तू हमारे कर्ज़ माफ़ करता है, हमें आज़माइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। इस शायद कुदरत और जलाल हमेशा तेरे। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफ़ाक़त और शराकत तब से लेकर हम सब खानदान के साथ अब तक होती रहे। आमीन। बहुत ज़्यादा तो अनाउंसमेंट्स नहीं हैं। सबसे पहले आपने भी नोटिस किया होगा कि आज हमारी स्ट्रेंथ थोड़ी कम है। हमारी मेजॉरिटी फैमिलीज़ जो सी हैं वो हॉलीडेज़ पे हैं, तो हम खुदावंद से दुआ करते हैं उनके लिए कि जहाँ कहीं भी हैं वो खुदावंद उनकी खुशियों को दोबारा करे, खुशोखुरम रहें, बखैर वाफियत वापस अपने घरों को आएँ। और हम उम्मीद रखते हैं कि नेक्स्ट मंथ जो हमारी सर्विस होगी सारी फैमिलीज़ हमारे साथ उसमें शामिल होंगी। नोट कर लीजिए हमारी जो नेक्स्ट सर्विस है वो अगस्त में उसमें होगी सितंबर में 6 तारीख को। खुद भी आएँ, दूसरों को भी प्रमोट करें, थोड़ा सा मोटिवेट करें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, ताकि हम मिल के खुदावंद के नाम की प्रस्तुत और सताइश कर सकें। विलियम भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। विलियम भाई आपके खूबसूरत कलाम के लिए, इस जिम्मेदारी को संभालने के लिए जो आज आपने संभाली उसके लिए हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। सिस्टर आरमा के हम शुक्रगुजार हैं जिन्होंने शॉर्ट नोटिस पे सर्विस कंडक्ट करने की जिम्मेदारी ली, उनके लिए भी हम शुक्रगुजार हैं। एज यूजुअल नवीद भाई और उनकी पूरी फैमिली के लिए हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि वो अपनी खूबसूरत आवाज़ों में हम तो सना करते हैं और हम ब्लेस होते हैं। उनकी सारी एफर्ट्स के लिए हम खुदावंद के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। आप सबके शुक्रगुजार हैं कि आप अपने कीमती वक्त में से निकाल के यहाँ आए हैं और आपसे दरख्वास्त है कि यूं ही कंटिन्यू इसको रखें ताकि हम मिल के खुदावंद के काम को इसी तरीके से आगे बढ़ा सकें। जिन पेरेंट्स के साथ छोटे बच्चे हैं और संडे स्कूल जाते हैं वो नोट कर लें कि 22 अगस्त को बच्चों का डे आउट रखा गया है और वो रॉकेट ग्लेन पार्क में होगा। अगर वेदर अच्छा नहीं होगा तो फिर उसका इंडोर इंतज़ाम किया जाएगा। मज़ीद मालूमात के लिए आप लोग इन कॉन्टेक्ट रहें नेथन भाई के साथ। नेथन भाई के पास उसकी तफसीलात हैं कि अगर आउटडोर नहीं होगा तो इंडोर वो कहाँ अरेंज करेंगे। अगर इंडोर होगा तो उसमें नॉमिनल से चार्जेस होंगे जो शायद हमें पे करने पड़ेंगे। बाकी फेलोशिप जो है वो बच्चों के लिए खुद सारा कुछ अरेंज करेंगे। और कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं है जो कि की जाए, लेकिन अगर कोई होगी तो वो फेलोशिप के व्हाट्सएप ग्रुप पे डालती जाएगी और आपको वहाँ से मिलेगी। इबादत का अख्तिताम हो चुका है, अब वक्त है कि हम फेलोशिप करें। पीछे हॉल में जाएंगे और वहाँ जाके हम खाना खाएंगे और फेलोशिप करेंगे। जीत पर भाई जी नेक्स्ट वीक आउटिंग वो फ़िलहाल उस पर डिस्कशन हो रही है, वो अभी कंफर्म नहीं हुई, वो फिर बाद में अनाउंस करेंगे। तो इबादत ख़त्म होगी